हमजा। हमजा, देखो स्क्रीन सही है, दिख रहा है, पूरी तरह से विजिबल है। गुड मॉर्निंग स्वर्णिम, स्क्रीन इज विजिबल, क्लियर एकदम। बहुत कम बच्चे ज्वाइन किए अभी तक क्लास, क्या हो गया? क्या दिख रहा है? अच्छा, अब देखो, जैसा हो बताना। अब पूरा देख रहा है, कॉर्नर से दिख रहा है U4। ऐसा कैसे हो सकता है? अब 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 पूरा दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, U4 दिख रहा है बेटा। गुड मॉर्निंग नम्रा। अब ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद हम लोग रिवाइज करेंगे सब चीजें। पॉइंट 11 ऑफ जनवरी से आपका प्री एंड सेमेस्टर एग्जाम है और 95% योर एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन विल बी ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बेस्ड विद ऑफलाइन मोड। एक आपको सेंटर दिया जाएगा, उस सेंटर पे सबको पहुंचना होगा और OMR के थ्रू आंसर अपने लिखने होंगे। OMR के थ्रू करेक्ट आंसर जो है वहां पे मार्क करने होंगे। सभी लोग ने इस तरह के टेस्ट तो दिए ही हैं। हाँ, तो तैयारी शुरू कर दीजिए बेटा। प्रखर वाजपेयी क्यूट क्लास में नहीं थे कल, क्या हो गया? अच्छा, हाँ सुबह भी क्लास में नहीं थे। सूरज चौबे, तुमको क्या हो गया था ट्यूट में? So now going to start the lecture. In previous lecture, I discussed about the identification and the authentication methods. Now in this lecture, I am going to discuss about the access control. Yesterday, I also give you some hint about the access control. So the person who were absent in previous lecture, I am going to explain access control again. Access control, अरे बहुत देर तक लोग आते रहते हैं अभी तक। So access control is the method by which you are able to restrict or check the access of any unauthorized user, or you can also control the access of an authorized user by meanings of different techniques. So access control are defined by protection rules,
क्या बात है भाई, इतना लेट क्यों ज्वाइन होता है? So access control are defined by protection rule which define the possible ways in which subject, देख लो जरा, भी स्टार्ट करते हैं, सब आ ही रहे हैं अभी तक। रितिका क्या प्रॉब्लम है बेटा? शशांक, फिफ्टीन मिनट का ब्रेक मिलता है, उसके बाद कम से कम 15 मिनट के अंदर तो आप लोग आइए। युवराज, युवराज पांडे, क्यों डिले हो जाता है बेटा? अब ये तो एक बहाना हो गया, कनेक्ट नहीं हो रहा था। सेवन मिनट्स ऑलरेडी पास अवे। इतने देर तक थोड़ी ना डिले कर सकते हैं या वेट कर सकते हैं। So access control are defined by protection rule which define the possible ways in which subject and objects are allowed to interact. There are four main components during access control. Yesterday I told you access control, you can also say that it is a technique of to check the authorization for any user. So there are four components used during access control or the authorization process. You must aware about this, that this will be asked in your MCQ question or objective type questions. उसके थ्रू ये पूछे जा सकते हैं. So these components are commonly known as subject, object, protection rule and module or the operation. ठीक है, ऑपरेशन भी हो सकता है, मॉड्यूल भी है, तो सब्जेक्ट है, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट है, इन सबको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। अभी लोग जुड़ तो जाएं, देख रहे हैं लगातार आते चले जा रहे हैं। अभिनव मौर्य, इतनी लेट ज्वाइन किया है और 2 दिन क्लास में भी नहीं थे, प्रीवियस 2 लेक्चर में नहीं थे। एक 2 दिन तो कॉलेज में देखे गए हो। चलिए, नाउ कम टू द कंपोनेंट्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल इन डिटेल। फर्स्ट कंपोनेंट इज सब्जेक्ट। सो व्हाट इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज एन एंटिटी wishing to access and perform operation on which the object and the another user which access authorization are to be granted. So the basically subjects are either processes, जो भी process include है, या user. Subjects are either processes or user. Users, you can say that users, number of users are there. So subject is an entity wishing to access and perform operation on objects and to which access authorization are to be granted. तो वो कोई पर्सन हो सकता है या कोई प्रोसेस हो सकता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि लॉगिन करना है। लॉगिन करने का मतलब क्या है? बिकॉज I want to check my authentication and as well as authorization. When you are saying that you should be authorized as access the module, user or the admin. तो admin और user क्या है? These are the kind of method of to decide or restrict the authorization. और login क्यों करते हैं? Authentication के लिए, ऑथेंटिकेशन प्रूफ करने के लिए, बिकॉज आई एम द ऑथेंटिक पर्सन। सो आइडेंटिफिकेशन और ऑथेंटिकेशन के बाद जब आपने एक बार लॉग इन कर लिया, तो उसके बाद या प्रीवियस में भी जिस मॉड्यूल के साथ, दिस कैन हैपन बिफोर द प्रोसेस ऑफ लॉग इन एंड ऑल्सो आफ्टर द प्रोसेस ऑफ लॉग इन, जो दोनों साइड ही होता है, डिपेंड अपॉन द डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू।
कि उसने किस तरह से फॉर्म को डिजाइन किया है। तो या तो उसने दो ऑप्शन दे रखे हुए हैं वहीं पे कि आप एज एडमिन लॉगिन करिए या यूजर लॉगिन करिए, या आपने लॉगिन कर लिया और उसके बाद वहां पे फर्दर रोल डिसाइडेड है कि आप जैसे ही लॉगिन भी किया तो वो पर्टिकुलर मॉड्यूल आपके हाइड है। अगर आपने गलती से लॉगिन कर लिया किसी और मॉड्यूल में या एडमिन वाले में, तो लॉगिन को आपको करने देंगे या वहीं पे ही आपका ड्रॉप बॉक्स बना होगा उसके थ्रू चेक कर लेंगे कि आप एडमिन है यूजर है। देयर आर नंबर ऑफ वेज टू डिसाइड द ऑथराइजेशन ऑफ एनी यूजर। ठीक है, तो ये पैरेलल भी हो सकता है, सेपरेट भी हो सकता है, एंड आफ्टर एंटरिंग इनटू द वेबसाइट और द सॉफ्टवेयर वहां पे भी ये सेग्रीगेट कर सकते हैं। इट डिपेंड्स अपॉन द चॉइस ऑफ यूजर या नेचर ऑफ द वर्क। सेकेंड इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इट इज object. So object is an also entity which access must be controlled. Object का मतलब mainly resource होता है जिसको आप यूज कर रहे हैं, तो it will must be also controlled. An object may be either a file or database या कोई भी आपका समझ लीजिए कोई डेटा स्ट्रक्चर भी क्यों ना हो, डीएस, चाहे वो ट्री डेटा स्ट्रक्चर हो, ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर हो, फाइल हो सकता है, डेटाबेस हो सकता है, या कोई भी डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है। ऑब्जेक्ट जिसको आपको यूज करना है, ठीक है, आइदर इट इज अ फाइल और अ डेटाबेस और डेटा स्ट्रक्चर और सेमाफोर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मे बी एनीथिंग विच मस्ट बी एक्सेस बाय द सब्जेक्ट, that is your user or any process. Third important component is operation. So each object is associated with a set of operation that may be performed on it. समझ रहे हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जब भी यूज होगा वो किसी न किसी ऑपरेशन के थ्रू ही यूज होगा। So each object is associated with a set of operation that may be performed on it. For example, you can say that data file, you can say that the data file operation, और ऑपरेशन में आप चाहे कह सकते हैं इसको ओपन ऑब्लिक, ये कह सकते हैं या तो आप ओपन करें या क्लोज करें, क्रिएट करें, डिलीट करें, किसी भी तरह के। अगर आप ऑपरेशन की बात करें डेटा फाइल के, तो चाहे ओपन करें, क्रिएट करें, क्लोज करें, डिलीट करें, रीड करें, राइट करें, ये जो भी है इनको हम लोग कहते हैं ऑपरेशन यानी मोड। दिस इज आल्सो नोन एज मोड। किस मोड में आपने उस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करने जा रहे हैं, उसका मोड क्या है। ठीक है, फॉर प्रोग्राम फाइल यू कैन बी से दैट द ऑपरेशन आइदर रीड, राइट और एग्जीक्यूट। अगर आप प्रोग्राम की बात करें, प्रोग्राम फाइल है, तो प्रोग्राम फाइल के ऑपरेशन आप क्या सकते हैं, या तो रीड होगा, सबने सी में पढ़ा है, राइट होगा या एग्जीक्यूट होगा। इट इज आल्सो आई थिंक लर्न बाय इन द सब्जेक्ट ऑफ डेटाबेस। डेटाबेस में भी आपने ऑपरेशन, और जहां पे आप कॉन्करेंसी कंट्रोल करते हैं तो वहां पे भी फाइल का ऑपरेशन सेट रहता है कि किस ऑपरेशन में क्या आप काम करेंगे। So operation performed on the object with set of operation and the mode of operation. Fourth important point is protection rule. Protection rule. Protection rules govern rule for the subject access to the object. Protection rules govern rules for the subject's access to object, कि यूजर के लिए रूल बना दिए कि किस रूल के अंडर में, किस रूल के अंतर्गत आप किस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को यू आर गोइंग टू एक्सेस। तो एसोसिएटेड विद ईच आइदर इट इज सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट व्हाटएवर, और इन द पेयर, या तो सब्जेक्ट होगा या ऑब्जेक्ट होगा या दोनों होंगे। पेयर, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, इज एन एक्सेस राइट
that define the set of possible operation। तो प्रोटेक्शन रूल साथ में लगा दिए गए। जैसे मैंने बताया कि ये तो आपके ऑपरेशन है रीड राइट एग्जीक्यूट, बट यहां पे भी टू अवॉइड कॉन्करेंसी, टू अवॉइड और चेकिंग द ऑथराइजेशन, आपने कहा कि नहीं कोई बाहरी यूजर है जिसकी आपने ऑथेंटिसिटी चेक नहीं की है या जिसके ऑथराइजेशन अभी तक फिक्स नहीं है, तो वो केवल आपका जो है सॉफ्टवेयर या साइट या आपका डेटाबेस कोई भी आपका पार्ट हो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, उसको सिर्फ रीड कर सकता है, सिर्फ विजिट कर सकता है आपकी साइट को, और आपने उसको राइट का या एग्जीक्यूशन का परमिशन नहीं दिया है। सो दिस इज प्रोटेक्शन रूल। ठीक है, कहीं कहीं ये हुआ कि आप सिर्फ राइट कर सकते हैं यानी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन मॉडिफिकेशन नहीं होगा। जैसे हम लोग के पास भी है, हम लोग जब आपकी अटेंडेंस अपडेट करते हैं तो हमारा काम मेन अटेंडेंस को क्रिएट करना है और उसको राइट करना है, प्रोसेस करना है। लेकिन अगर कहीं कोई गलती से किसी को अब्सेंट या किसी को प्रेजेंट कर दिया है तो ये अथॉरिटी नहीं है हमारे पास, उसके लिए हमें प्रॉपर चैनल के थ्रू सुपरवाइजर के पास जाना पड़ता है और रीजन बताना पड़ता है कि व्हाट इज द रीजन, क्यों ये गलती हुई है, क्यों ऐसा हुआ है। ठीक है, तो उसके बाद मॉडिफिकेशन विल बी पॉसिबल, वो पॉसिबल होगा, लेकिन उसके लिए आपको प्रॉपर चैनल के थ्रू जाना होगा। सो these rules are known as protection rule. These are the kind of protection, क्योंकि ये सब हम लोग पहले ही करते हैं बिफोर यूजिंग एनी protection methods in terms of, you can say that antivirus, firewall and other precautionary steps will be taken। उसके पहले पहले हम लोग ये सब काम कर लेते हैं। Now come to the another method of access control। पहले तो हम लोग ने मेन जो है ये पढ़ लिया, इसका कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, बेसिक्स क्या होते हैं। Now come to the method for identification or the authentication, identification और identity based policies। जो आपका आइडेंटिफिकेशन है वो किस तरह से होगा और उसकी पॉलिसीज किस तरह से होगी। आइडेंटिफिकेशन और आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिसीज दैट आर कैटेगराइज्ड इनटू इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिसी, ग्रुप बेस्ड पॉलिसी एंड रोल बेस्ड पॉलिसी। तीन तरह की पॉलिसी होती है, इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिसी, ग्रुप बेस्ड पॉलिसी एंड साथ ही साथ जो आपकी होगी रोल बेस्ड पॉलिसी। So what is individual based policy? It is expressed in terms of list for each subject stating which subject may perform which action on the object। इंडिविजुअल का मतलब ये हुआ कि किसी भी पर्टिकुलर यूजर के लिए इसको इस टर्म में या लिस्ट ऑफ पॉलिसी या लिस्ट ऑफ एक्शन जो भी परफॉर्म होने हैं वो पहले से ही बता दिए जाते हैं कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट में कौन कौन से एक्शन को परफॉर्म आप कर सकते हैं। किसी भी ये इंडिविजुअल पर्सन के पे डिपेंड करती है। सेकेंड वन है आपका ग्रुप बेस्ड पॉलिसी, in which several subjects are granted the same permission for one object। यानी several number of users हैं उनको सेम परमिशन दी जाती है टू एक्सेस अ पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, देन इट इज नोन एज ग्रुप बेस्ड पॉलिसी। ये बिल्कुल वैसे ही है कि आप और हम सभी लोग किसी न किसी वेबसाइट्स जो आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट होती है उससे एसोसिएट रहते हैं, तो कुछ ऑफर्स, कुछ पॉलिसीज ये पर्सनलाइज्ड होती हैं, इंडिविजुअल बेस्ड होती हैं, यानी ये पर्टिकुलर ऑफर बताते हैं ये सिर्फ आपके लिए ही है, और कुछ ऐसे होते हैं जो ग्रुप में होते हैं। तो दीज रूल्स आर फॉर कॉमन, द सब्जेक्ट एरियाज और द लिस्ट आर कॉमन फॉर एंटायर ग्रुप to use that particular object।
और कुछ ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, इंडिविजुअल बेस्ड होते हैं। ठीक। थर्ड है आपका रोल बेस्ड पॉलिसी। रोल किस तरह का है? सो इन रोल बेस्ड पॉलिसी राइट्स आर ग्रांटेड टू ग्रुप ऑफ पीपुल बेस्ड ऑन देयर रोल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जब भी आप बात करते हैं, जैसे कोई कस्टमर है या ऑडिटर है, सो ये इनके पास एक अपने अप्रोप्रिएट राइट होते हैं डिपेंडिंग their role. I already told you that whenever we as a faculty done any mistake or it may be happen by human mistake या किसी भी तरह से कि अपसेट को पी और प्रेजेंट को ए कर दिया, तो जब हम किसी सुपरवाइजर के पास जाते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर के, तो उनके पास रूल एक जैसे हो। रूल एक जैसे होने का मतलब वो सबको परमिशन तो देंगे या उनके टास्क को परफॉर्म तो जरूर करेंगे, अपडेट जरूर करेंगे, बट वहां पे एक रजिस्टर पुट रहता है, उसमें रजिस्टर में वो रिमार्क लिखवा लेते हैं। और अगर कोई भी फैकल्टी फ्रिक्वेंटली इस टाइप की मिस्टेक को करेगा, देन इट विल बी मार्क्ड या कोई भी फिर फर्दर रीजन पर्सनल लेकर के भी पूछा जा सकता है। तो ये जो पॉलिसी में बता रहा हूं, जो रूल बता रहा हूं, यानी वो पर्टिकुलर रोल सुपरवाइजर के रोल में आता है, and it happened for all. So this policy is based on the role. ये रोल पे डिपेंड करती है कि किस तरह का रोल किसको असाइन किया गया, उनकी ये पावर है, वो ये काम कर सकते हैं। समझ रहे हैं? ये काम कर सकते हैं। तो फर्स्ट जो आपका मेन पॉइंट था एक्सेस कंट्रोल का, दैट आर आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसीज। इसके अंदर हम लोग ने 3 पॉलिसीज पढ़ी, इंडिविजुअल बेस्ड पॉलिसी, ग्रुप बेस्ड पॉलिसी एंड रोल बेस्ड पॉलिसी। नाउ कम टू द अनदर टाइप ऑफ मेथड फॉर एक्सेस कंट्रोल, दैट इज सेकेंड मेथड। दीज आर रूल बेस्ड पॉलिसी। पहला था आइडेंटिटी बेस्ड या आइडेंटिफिकेशन, दूसरा है रूल बेस्ड पॉलिसी। ये सबको दिख रहा है बेटा? पेज इज विजिबल? ऐसे ऐसे? अच्छा, राइट, बताइएगा। अच्छा, देखना, बताते रहिए, देखते रहिए, बताते रहिए। ये यहां पे क्या लिखा हुआ है? पल्लवी? नहीं, ये जहां पे मेरा पेन है। अब देखिए नंबर टू पॉइंट इज रूल बेस्ड पॉलिसी। रूल बेस्ड पॉलिसी। So rule based policy are categorized into 2 category, that is multi-level policy and compartment based policy. मल्टी लेवल पॉलिसी, देखिए इनके पॉइंट तो आपको समझने पड़ेंगे। थोड़ा सा गिर गया, हिल गया। वेट फॉर सम मिनट। दिख रहा है? 2 नंबर दिख रहा है। पहला पॉइंट है मल्टी लेवल पॉलिसी। पहला पॉइंट है आपका मल्टी लेवल पॉलिसी, और सेकेंड पॉइंट जो है, जो टाइप है, दैट इज कंपार्टमेंट बेस्ड पॉलिसी। जहां पे ना दिखे बताइएगा। मल्टी लेवल पॉलिसी, कंपार्टमेंट बेस्ड पॉलिसी। थोड़ा सा और शिफ्ट कर दूं, हो सकता है आपको दिखे, बताइएगा।
प्रॉपर दिख रहा है ना? ठीक ठीक। मल्टी लेवल पॉलिसी एंड कंपार्टमेंट बेस्ड पॉलिसी। सो व्हाट इज मल्टी लेवल पॉलिसी? देखिए नाम सबके जरूर याद रखिएगा, नाम याद रखना बहुत जरूरी है कि सबसे ज्यादा देखिए डीप में, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बताया, नाउ ऑल ऑफ यू आर सजेस्टेड कि आप अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से। 95% नाउ चांस आर योर पेपर विल बी इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म। उसमें भी ऑफलाइन मोड में होगा, बुकलेट दी जाएगी, उसके साथ OMR शीट होगी उसके अंदर, और जो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे और करेक्ट रिस्पॉन्स उसमें आपको मार्क करने होंगे, वो चाहे बॉल पॉइंट पेन हो या पेंसिल हो, किसी भी तरह से। तो ज्यादातर क्वेश्चन जो आएंगे वो टाइप्स, स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज, पॉइंट बेस्ड होंगे। You must aware about the first of all points and then you must aware the meaning of that point। समझ रहे हैं? ये बहुत जरूरी है, ये याद रखना बहुत जरूरी है। और कहीं अगर मोर देन वन करेक्ट वाला आ गया तो उसमें सबसे ज्यादा पॉइंट ही पूछे जाते हैं। 2 पॉइंट इधर के देंगे, 2 पॉइंट उधर के देंगे, फिर आपको रिकॉग्नाइज करने में परेशानी होगी और आंसर गलत हो जाएगा। सो मल्टी लेवल पॉलिसी ऑपरेट्स by assigning to each object a security level from the hierarchy of level, जो भी दी हुई है hierarchy of levels, जो भी इन्होंने डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग, जो हमने बताया मल्टी लेवल पॉलिसीज, तो जो भी hierarchy बनी हुई है उस पे बेस्ड होती है मल्टी लेवल। जैसे सपोज करिए कि आपको अपनी बात रखनी है, हम हमेशा एग्जांपल देते हैं रियल लाइफ, टू कनेक्ट योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स और सिनेरियो जो कि आपके साथ हो चुके हैं या आपने उनको फील किया है, आप अवेयर हैं। तो कोई भी प्रॉब्लम होती है तो हायरार्की हमारे एक बनी होती है, ये डिपेंड करता है कि आप टॉप टू बॉटम जाते हैं या बॉटम टू टॉप जाते हैं। आई ऑलवेज सजेस्टेड यू इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, जहां पे हमने बात की सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की, प्रॉब्लम पार्टीशनिंग है, डिजाइन अप्रोच है, या डेटा स्ट्रक्चर में भी जहां पे भी प्रॉब्लम आप पार्टीशन करते हैं तो हमेशा बॉटम टू अप की बात की जाती है, टॉप टू बॉटम की बात की जाती है, बॉटम टू अप की बात की जाती है। तो सबसे पहले कोर्स कोऑर्डिनेटर लेवल पे आप जाएंगे, फिर HOD लेवल पे जाएंगे, फिर प्रिंसिपल लेवल पे जाएंगे, फिर डायरेक्टर लेवल पे जाएंगे, एंड देन टॉप एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के पास जाएंगे, वो ED से हो या डीन, वहां तक जा सकते हैं। सो इसी तरह यहां पे भी जब रूल बनाए जाते हैं तो वो उसकी भी हायरार्की बनी होती है, वो रूल हायरार्की पे फॉलो होते हैं। लेवल्स आर डिसाइडेड बट द रूल्स आर फॉलोड इन द टर्म ऑफ हायरार्की। कोई भी इंफॉर्मेशन भी होगी वो टॉप से लेकर के बॉटम तक आती है। जिस तरह से वाइस वर्सा अगर पॉलिसीज की बात करें तो पॉलिसीज डिसाइड होने से लेकर के बनने तक, पहले डिसाइड होती है, फिर वो इंप्लीमेंट के लिए बनती है, ड्राफ्ट तैयार होता है, फिर वो इंप्लीमेंटेशन के लिए आती है, उसके फिर रिजल्ट देखे जाते हैं या ग्राउंड पे आती है। तो आइदर इट इज बॉटम टू टॉप और टॉप टू बॉटम, बट इट मस्ट बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल। So this is known as multi-level policy. Okay. Now come to the compartment level policy. So in compartment level policy, a set of objects associated with a name, security components or category, which isolates other set of objects. So whenever any user needs to give a distinct clearance, डिस्टिंक्ट क्लियरेंस का मतलब होता है और ज्यादा डीप में। अब किसी भी लेवल पे आपकी प्रॉब्लम हो रही है और मल्टी लेवल से सॉल्व नहीं हो रही है, तो और ज्यादा जानने के लिए, क्योंकि क्या होगा यहाँ पे जब इस लेवल का एक ड्रॉबैक ये है कि सब अपने पार्ट का रोल तो प्ले करेंगे लेकिन दूसरे के पार्ट में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। अगर आपको किसी और मामले में डीप स्टडी की जरूरत है या डीप क्लियरेंस की बात है तो आपको उस पर्टिकुलर लेवल यानी जो कंपार्टमेंट है वहां पे जाके बात करनी होगी। तो ऑल द क्लियरिटी और द कंफ्यूजन मस्ट बी सॉर्ट आउट इन दैट पर्टिकुलर कंपार्टमेंट ओनली। जिस तरह से ट्रेन में कंपार्टमेंट होते हैं इसलिए इसका नाम दिया कंपार्टमेंट, तो उस कंपार्टमेंट में जाकर के वहां के ही जाकर के रोल डिसाइडेड होते हैं और आपकी प्रॉब्लम वहां पे ही सबसे ज्यादा सुनी जाती है और सॉल्यूशन भी आपको वहीं मिलता है। चैनल में भी अदर,
जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे बात कर रहे हैं कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, सपोज करिए फी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो चाहे तो आप डायरेक्टली जाके बात कर सकते हैं, लेकिन उसके पहले जो मेन हायरार्की बनी होती है कि आप कोर्स कोऑर्डिनेटर से बात करें, वो एचओडी से बात करेंगे, और ज्यादा डिटेल में जानना है तो एचओडी टू अ लार्ज एक्सटेंट कैपेबल टू सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम, यानी वहां पे उन्हें सब पता है और आपका बैकग्राउंड, अगर टॉप लेवल पे भी जाएंगे तो वहां से भी क्वेरी एचओडी लेवल या कोर्स कोऑर्डिनेटर लेवल पे जाएगी, जो कि जिनके पास डीप नॉलेज है अबाउट द योर बैकग्राउंड, either it can be clarify or investigate physically या ग्राउंड पे जाकर के, या टॉप बात करके हो सकती है, या ग्राउंड पे जाकर के पता चल सकता है कि नहीं वाकई में आपका प्रॉब्लम है या सिर्फ प्रॉब्लम बनाई जा रही है। मैं इसलिए बहुत ज्यादा डीप में से एग्जांपल को लेके जा रहा हूं, तो वो काम वहां तक है, टॉप लेवल तक आप जा सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व कहां पे होगी, कोऑर्डिनेटर लेवल पे और एचओडी लेवल पे। जहां पे यहां खत्म हो गया रोल, तो फर्दर आप सपोज करिए आपको रिलैक्सेशन देना है या नहीं देना है, तो दे आल्सो आस्क रिकमेंडेशन फ्रॉम द लोअर पार्ट, लोअर फंक्शनिंग पार्ट। तो यहां पे जो कंपार्टमेंट की बेसिक रोल डिसाइड होते हैं, सो दीज आर नोन एज रूल बेस्ड पॉलिसीज, जिसमें हर कंपार्टमेंट के और हर लेवल के डिस्टिंक्ट रोल आर डिसाइडेड, और जहां पे आपको जिस लेवल में जाके क्लियरेंस या डीप स्टडी की जरूरत है, डीप नॉलेज की जरूरत है, सॉर्ट आउट की बात करने की जरूरत है, वहां पे वो सॉल्व हो जाती है वो प्रॉब्लम, उस लेवल पे जाके वो प्रॉब्लम आपकी सॉर्ट की जाती है। थर्ड जो आपका टाइप है एक्सेस कंट्रोल का, दीज आर सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। अब सिक्योरिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, अभी तक तो यहां तक एक्सेस कंट्रोल यहां तक हो गया, अब कुछ सिक्योरिटी मैकेनिज्म की जरूरी है। सो सिक्योरिटी आर डिफरेंट लेवल, फर्स्ट वन इज हायरार्किकल। जब हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, अब यहां पे सिक्योरिटी की बात होती है, यहां पे ऑथेंटिकेशन के बाद जो हम लोग ने प्रीवियस कि इनका ये रोल है, रोल असाइन कर दिया, कंपार्टमेंट लेवल रोल असाइन कर दिया, आइडेंटिटी कर दी, पॉलिसी फिक्स कर दी, नाउ कम टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट। सो फर्स्ट लेवल आर नोन एज हायरार्किकल लेवल, एज टॉप सीक्रेट। इसके जो लेवल हैं वो डिसाइड होते हैं हायरार्किकल लेवल में। ये भी होता है टीएस, जिसको हम लोग नाम देते हैं टॉप सीक्रेट, ये मैंने आपको पहले बताया भी था। एक सी होता है जिसको हम लोग कहते हैं कॉन्फिडेंशियल, और तीसरा होता है यू, अनक्लासिफाइड। टॉप सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल, ये मैंने कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्सेप्ट में आपको बताया था, और तीसरा होता है अनक्लासिफाइड। अनक्लासिफाइड एक मिनट होल्ड करिएगा, थोड़ा सा पेज ऊपर कर दें। ये दिख पा रहा है जो इसके स्टैंड के पास है, अनक्लासिफाइड, यू का मतलब है अनक्लासिफाइड। तो जब हायरार्की की बात करते हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले उनकी हायरार्की को डिफाइन किया जाता है। फर्स्ट वन इज टॉप सीक्रेट, टीएस, कोड पे सारी बात होती है, टीएस टॉप सीक्रेट, फिर कॉन्फिडेंशियल एंड देन अनक्लासिफाइड। मींस ये लोअर लेवल की सिक्योरिटी होती है, हायरार्किकल लेवल में ये लोअर लेवल है जिसमें कुछ डिफाइड नहीं होता है, क्लासिफाई नहीं होता है। Each subject and object are assigned security level from the same hierarchy. For example, you can say that whenever a person having a top secret clearance that is allowed to read document label top secret, a person with top secret classification can read unclassified document also, क्योंकि वो सबसे लोअर लेवल की है। तो if I got a security level of top secret, then I already permitted to read any document or access any document which categorized as unclassified. समझ रहे हैं? लेकिन अगर जिसका टॉप सीक्रेट है और उसके बाद वो सारे पढ़ सकता है, वाइस वर्सा किसी का कॉन्फिडेंशियल है तो वो अनक्लासिफाइड को तो पढ़ सकता है डॉक्यूमेंट, क्लासिफाइड कॉन्फिडेंशियल वाला भी पढ़ेगा, लेकिन टॉप सीक्रेट लेवल को वो एक्सेस नहीं कर पाएगा।
तो जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वहां पे भी हायरार्की बनी होती है, हायरार्की को आप परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट है मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल। These are also type of access control where access control or restrictness of access control or the authorization is comfortable and mandatory. Comfortable है साथ साथ mandatory है. So this security level is assigned to each subject reflecting the degree to which it is trusted not to disclosure sensitivity to other object in accordance with the sensitivity of the information. So यहाँ पे मैंडेटरी है, इसको आपको परफॉर्म करना ही करना है, इसको इंप्लीमेंट करना ही करना है, बट देयर मे बी 2 or 3 मोड. फर्स्ट मोड इज ऑल ऑफ यू ऑलरेडी अवेयर अबाउट द मोड. मैंडेटरी की जहां बात होती है, पहला होता है रीड ओनली एक्सेस, यानी आपको करना ही करना है, और उसमें फर्स्ट पार्ट है आपका रीड ओनली एक्सेस. रीड ओनली एक्सेस का मतलब आप सभी लोग अवेयर हैं, रीड ओनली मोड में खोलना. फाइल हैंडलिंग में भी आपने जब सी की पढ़ी होगी तो वहां पे भी है, डेटाबेस में भी आपने पढ़ा होगा कॉन्करेंसी कंट्रोल के कॉन्टेक्स्ट में. सो रीड ओनली एक्सेस स्टिपुलेट दैट अ सब्जेक्ट, व्हाटएवर सब्जेक्ट, सपोज करिए एस, हैज रीड एक्सेस टू ऑब्जेक्ट एक्स if security level of S is greater than or equal to security level of X. तो रीड ओनली का मतलब वो सिर्फ उसको पढ़ सकता है, लेकिन उसकी सिक्योरिटी लेवल जो है वो ज्यादा होना चाहिए कंपैरेटिव टू किसी भी X ऑब्जेक्ट से, अगर सब्जेक्ट आपका S है. दूसरा एक लेवल आपका होता है दैट इज राइट ओनली. Write only access stipulate that subject has right access to object X if security level of X is greater than that of S. So अगर कोई भी X है और आपका यूजर S है और उसको राइट ओनली परमिशन मिली है तो ही वो उसको एक्सेस कर सकता है, यानी उसमें कुछ लिख सकता है या राइट कर सकता है. तो दीज आर द मैंडेटरी एक्सेस कंट्रोल. रीड वाला राइट नहीं कर सकता है, राइट वाला रीड भी कर सकता है. ये आप सभी को पता है, आपने डेटाबेस में भी पढ़ा इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्करेंसी कंट्रोल. राइट अगर आपके पास परमिशन है देन यू आर आल्सो एबल टू रीड दैट पर्टिकुलर फाइल और डेटाबेस, लेकिन रीड वाला सिर्फ रीड कर सकता है, वो राइट नहीं कर सकता है. फिफ्थ पॉइंट है इसी के कॉन्टेक्स्ट में, फिफ्थ पॉइंट है आपका इसी के कॉन्टेक्स्ट में डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल. डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल. डिस्क्रिशनरी का मतलब हो गया कि ये मैंडेटरी नहीं, दिस इज डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ द लेवल ऑफ द पर्सनल विच होल्ड एनी पोजीशन. वो उसकी अपनी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो उसको मेंटेन करे या ना करे. सो इन डिस्क्रिशनरी एक्सेस कंट्रोल वंस अ सब्जेक्ट हैज ऑब्टेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट इट कैन पास ऑन दैट इंफॉर्मेशन टू एनीवन एल्स विदाउट द नॉलेज ऑफ द ऑब्जेक्ट और द ओनर. It is only its discretionary power what he think about that particular information, whether it should be revealed or passed without any information to the object, और वो चाहे तो ऑब्जेक्ट को बता करके भी उसको फर्दर पास कर सकता है. नेक्स्ट है सिक्स्थ पॉइंट है इसमें लेबलिंग. The labeling requirement ensure that all human readable output produced by the system are labeled with the security level of the information attached to the visible output. और जिसमें मेन होता है जो हमने आपको बताया टाइप्स, जो हिरार्किकल वाले हैं, तो वहां पे लेबल कर दें. लेबल का मतलब मार्क कर दें कि ये पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका टॉप सीक्रेट है या कॉन्फिडेंशियल है या अनक्लासिफाइड है.
तो आपने देखा भी होगा इन्वेलप भी कई तरह के होते हैं। येलो जो इन्वेलप होता है उसका कुछ अलग मतलब होता है, ब्राउन कलर का इन्वेलप होता है उसका भी मतलब होता है। कभी कभी लोग येलो और ब्राउन को मिक्स भी कर देते हैं, लेकिन वहां पे उसका लेवल और उसकी सिक्योरिटी लेवल मेंशन कर देते हैं तो भी वो काम करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि नहीं ये पर्टिकुलर का इन्वेलप है तो ही ये काम होगा। इसी तरह से आउटपुट की जो फाइल होती है या सिस्टम जनरेटेड सॉफ्टवेयर फाइल होती है उसमें भी ये मेंशन रहता है, बट इट इज नॉट नेसेसरी तो वो उसी भी आपके पैटर्न पे हो या उसी ही कलर की हो, ये जरूरी नहीं है। अगर आपने एक बार लेबल कर दिया, लेबल इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि आपने जो उस पर लेबल लगा दिया, लेबल का मतलब मार्किंग, जो आपने मार्किंग कर दी, जो उसको लेबल लगा दिया, तो वो इंफॉर्मेशन वो पर्टिकुलर पैकेट उसी फॉर्म में ट्रीट किया जाएगा, वेदर इट इज टॉप सीक्रेट, सीक्रेट टॉप सीक्रेट है, सीक्रेट यहां मिस है लेकिन सीक्रेट भी होता है, कॉन्फिडेंशियल एंड अनक्लासिफाइड। एक्चुअली देयर आर 4 लेवल ऑफ हायरार्की। बुक में कहीं आपको मिलेगी, लेकिन अच्छी बुक में अगर आप देखेंगे तो वहां पे 4 लेवल की आपको सिक्योरिटी हायरार्की रहती है। टॉप सीक्रेट, टीएस, सीक्रेट, कॉन्फिडेंशियल एंड अनक्लासिफाइड। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेस कंट्रोल। ये पूरा जो हम लोग ने बात करी है वो सब पूरे एक्सेस कंट्रोल के में ये बात हमारी हो गई है। नेटवर्क सिक्योरिटी लगभग यहां से अचीव हो जाती है। उसके बाद भी कुछ पॉइंट बचते हैं जो मैं आपसे डिस्कस करूंगा अबाउट द सॉफ्टवेयर विच ब्रेक्स योर सिक्योरिटी विच इज वेरी पावरफुल। इतना सब होने के बाद भी वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या जिनको हम लोग वायरस कहते हैं, वायरस इज आल्सो टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम जो कि इन सिक्योरिटी को ब्रीचेस कर देते हैं या पार कर जाते हैं, पेनिट्रेट कर देते हैं, और जो भी आपके सिक्योरिटी मैकेनिज्म वो आपके धरे के धरे रह जाते हैं, यानी वो इफेक्टिव नहीं हो पाते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सिक्योरिटी करनी नहीं चाहिए या फुल प्रूफ नहीं है, बट आल्सो ड्यू टू सम you can say that not the steps using it is professional और द रूल जो आपने वायलेट कर दी है उनको ध्यान में नहीं रखना, ये सब कॉजेज होते हैं जिससे कि आपकी सिक्योरिटी जो है पेनिट्रेट हो जाती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस अबाउट द मैलिशियस सॉफ्टवेयर। मैलिशियस सॉफ्टवेयर, मालवेयर हम लोग कहते हैं। मालवेयर की अगर हम बात करें तो उसका एक्चुअल नाम होता है मैलिशियस सॉफ्टवेयर। सो मैलिशियस सॉफ्टवेयर आर प्रोग्राम दैट करप्ट अदर प्रोग्राम और pose severe security threat to the system. तो these fall into 2 categories। कौन सी 2 कैटेगरी होती है? पहला होता है होस्ट डिपेंडेंट, ये सब आप लोग पढ़े हैं लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपके पास होना चाहिए कि जो होस्ट डिपेंडेंट प्रोग्राम होते हैं और होस्ट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। पहला होता है होस्ट डिपेंडेंट और दूसरा होता है होस्ट इंडिपेंडेंट प्रोग्राम। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो कौन से प्रोग्राम ऐसे हैं जो आपके होस्ट डिपेंडेंट होते हैं और कौन से होस्ट इंडिपेंडेंट होते हैं, और इसके बाद ये लेक्चर आपका खत्म हो जाएगा। मीन टाइम आप सभी लोग अटेंडेंस मार्क कर दीजिए। यहाँ पे 43 स्टूडेंट्स आर देयर, ऑल आर रिक्वायर्ड टू मार्क देयर अटेंडेंस। लगभग ये चैप्टर खत्म ही हो गया है, थोड़ा ही सा पार्ट बचा है, तो ये करने के बाद फिर नेक्स्ट टर्म पे हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे और साथ ही साथ अगला टॉपिक भी रिवीजन लेंगे। 35 स्टूडेंट्स। इनमें पॉइंट पे ज्यादा फोकस करिए, ध्यान रखिएगा, पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग जब भी डिस्कस करेंगे, जो भी टॉपिक रिवाइज करेंगे, उसके पॉइंट, टाइप्स और की टर्म, किस तरह से उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है, इस पे हम लोग का फोकस रहेगा। ठीक, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू। किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है, कोई क्वेरी हो। सूरज, श्रेयांश, शुभांगी, हाँ तो आप थोड़ा सा
पढ़ाई जब आप करेंगे और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 11 जनवरी से आपका प्री एंड सेमेस्टर एग्जाम है और 15 जो डेट आई है वो लखनऊ यूनिवर्सिटी की डेट आई है आपके मेन एग्जाम की। आप दोनों को तैयारी करके चलिए, अब ज्यादा दिन बचे नहीं है, ओनली 15 डेज टू लेफ्ट। ठीक, और उस पॉइंट ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही तैयारी करिए। 95% इट इज पॉसिबिलिटी कि आपका एग्जाम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बेस्ड जो है उसी टाइप पे होगा। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक ऑल ऑफ यू।